Assalamu alaikum class. Walaikum assalam. Okay, only Yusuf is here. How are you, Yusuf? Yeah, I'm fine. You tell, ma'am, how are you? I'm also good, but feeling fasting. Okay, I'm going to share my screen. Okay, and you will be able to see the presentation. Okay, chalo. Okay, is this visible? Yes, ma'am. Yes. Okay. Chalo. The topic of the day is the vice caliph, right? Today's topic is the vice caliph. Acha, the word of vice actually is describing caliph. And who is caliph? Kaun hai ye khalifa? The Harun al-Rashid, the caliph Harun al-Rashid. So basically the vice, that means who is vice? Who is vice caliph? The vice caliph is Harun al-Rashid. Now, starting the topic, the Caliph Harun al-Rashid was known and respected for his justice and wisdom. What does it mean? What does it mean? क्या मतलब इस पैराग्राफ का? इसका मतलब जहाँ तक मुझे समझ में आया मैम, हमारे वो जाने जाते थे अपनी और क्या नाम है अपनी जो सेल्फ कॉन्फिडेंस की वजह से जाने जाते थे. That's good. Harun al-Rashid was famous because of justice and wisdom. उनके पास इतनी अक्ल सलीम थी, इतना उनमें एक पावर थी जस्टिस की कि वो इंसाफ बहुत अच्छी तरीके से करते थे. अच्छा, what happens at night? He would disguise himself. He would disguise himself as a common man and go through the streets of Baghdad. At night, he would disguise himself. What does it mean, disguise? Disguise means, ma'am, is like अपने आप का होलिया चेंज कर देना, अपना होलिया चेंज कर देना. At night, what he does, he would disguise himself as a common man. अपने आप को एक आम आदमी की तरह बना के अपना होलिया तब्दील करते थे. And go through the street of Baghdad. बगदाद की स्ट्रीट के अंदर घुमा करते थे. कौन घुमा करते थे? Harun Rashid. Harun al-Rashid. And Harun al-Rashid is the vice caliph. He would mingle with the common people. क्यों घूमते थे? Why he like moves in the street of Baghdad? He would mingle with the common people in order to gain first and knowledge of their difficulties and problems. क्यों? Why he loved to move in the street of Baghdad? क्यों vice caliph जो थे वो हारून रशीद गलियों में घुमा करते थे, अपना बेस बदल क्यों करते थे? Why he does? Ma'am, I think he wants to increase his knowledge and हमें जो वहाँ की जो आवाम की उनकी प्रॉब्लम कि हमें सॉल्व करने के लिए ना धोलिया बदल के ना अपनी स्ट्रीट्स में ना घुमा करते थे. Very good. He disguised himself. Why? Because he wanted to know the difficulty level and the problem of the people. ठीक है? और वो अपना हुलिया एक आम आदमी की तरह बनाते थे. Why? Because उनको पता था कि अगर मैं एक आम आदमी की तरह घूमूंगा, he can mingle with the people, लोगों से मिल सकते हैं. जब लोगों से मिलेंगे तो अपनी प्रॉब्लम्स, उनकी जो मौजूदा प्रॉब्लम्स हैं, लोगों की जो डिफिकल्टीज हैं, they can easily discuss with him and then he will be able to solve the issues in the problem. A beautiful picture of a horse. There is a new story. अब देखते हैं जरा ये स्टोरी क्या है. One day, एक दिन क्या होता है? When he was holding a court लगा हुआ था, लोग आते थे अपने मसले मसाइल लेके, हारून रशीद उसको go through करते थे and then he takes decisions with justice. One day what happens when he was holding court, एक दिन कोर्ट लगाया हुआ था, तो two men were brought before him. दो आदमी लाए गए उनके सामने. अब दो आदमी कौन थे? One of them was well dressed and appeared to be a well to do. एक तो अच्छे हुलिये के अंदर था और लगता था कि कोई अच्छी फैमिली का या अच्छा शहरी है, respectable citizen है. While जबकि the another seemed, दूसरा वाला था, to be a beggar, वो एक फकीर नजर आता था. कैसे नजर आया? अब देखिए हुलिया. One was in well dress, but the another one was not in the well dress. He seemed to be a beggar because he was in rags. फटे से कपड़े या वो पेवन लगे हुए कपड़े, that is called rags. These two men were holding between them a beautiful white horse. उन दोनों के दरमियान में एक खूबसूरत सा घोड़ा था. अब घोड़ा उन दोनों के दरमियान में क्या कर रहा था और वो दो घोड़ों के दरमियान क्या कर रहे थे? What was the issue? Let's see. The Qazi, a person, जो कि प्रॉब्लम को लेकर आया था, वो अप्रोच करता है कैलिफ को and said to him, "Oh leader,
of the faithful, I have brought before you a dispute which I could not settle. वो कहता है, ओ लॉर्ड, मैं आपके सामने एक ऐसा इशू लेकर आया हूँ. I have brought a dispute before you which I could not settle, which I could not solve. एक ऐसा इशू है जो कि मैं सॉल्व नहीं कर सका, वो मैं आपके सामने लेकर आया. It is a difficult case. It seems it's very difficult case. वो कहते हैं बड़ा मुश्किल सा case. But I am certain that with your knowledge and wisdom you will pronounce a just decision. वो कहता है कि मुझे आपकी नॉलेज, आपके विजडम पे बिलीव है कि आप डिसीजन लेंगे और आपका डिसीजन सही हो. चलें भाई, नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या बोला है कि these two men, आदमी जो थे, here are fighting over this horse. घोड़े पे लड़ रहे थे. घोड़ा मेरा मेरा मेरा. इसका घोड़ा था ये नहीं पता था, ना ये काजी को पता था, ना ये उस वक्त हारून रशीद को पता था. अच्छा, अब होता क्या है, ईच वन ऑफ देम क्लेम्स एंड स्वेयर्स, कसम भी खा ली भाई ये घोड़ा मेरा है. अब होता क्या है, स्टेप फॉरवर्ड द कैलिफ ऑर्डर्ड द वेल ड्रेस्ड मैन एंड लेट्स हियर व्हाट यू हैव टू से. वो क्या कहता है, घोड़े के साथ जो एक आदमी खड़ा होता है वेल ड्रेस में, उसको बोलता है, जो वेल ड्रेस वाला आदमी होता है, कि तुम आगे आओ और आगे आके अपने बारे में बताओ क्या कहानी है, मैं आपको सुनना चाहता हूँ. द मैन सेड, उसने क्या बोला टू द कैलिफ. कैलिफ को क्या आंसर करता है, वेल ड्रेस मैन की बात हो रही है यहाँ पे. ओ लीडर ऑफ द फेथफुल, आई बेग टू बिलीव मी दैट व्हाटएवर आई से इन योर प्रेजेंस शैल बी द ट्रुथ. मैं जो भी बोलूंगा आपकी मौजूदगी में, प्रेजेंस का मतलब होता है आपकी मौजूदगी होना, किसी की प्रेजेंस होना, मौजूदगी, शैल बी ट्रुथ, वो सच होगा. दिस मॉर्निंग व्हेन आई वाज राइडिंग टू द सिटी, यानी कि वो सिटी की तरफ जा रहा था, आई सॉ दिस बैगर लिम्पिंग अलोंग अहेड ऑफ मी. On hearing the sound of my horse, वो कहने लगा, I saw this beggar, मैंने उस आदमी को देखा, वो लंगड़ा लंगड़ा के लिम्पिंग करते हुए चल रहा था. On hearing the sound of my horse hoofs, he turned round, उस एकदम से वो टर्न किया, and mention, उसने क्या मेंशन किया, to me to stop. यानी कि वो शख्स जो कि वेल ड्रेस नहीं है, पुअर है, बैगर है, वो एक लंगड़ा लंगड़ा के चल रहा था, ठीक है. और वो क्या करता है, जैसे उसके कान में आवाज आती है, साउंड आती है हॉर्स हूफ्स की, हूफ्स का जो बॉटम पार्ट होता है ना, हॉर्स का जो सख्त बहुत हार्ड पार्ट होता है, फीट का जो बॉटम पार्ट होता है, फीट हॉर्स की, वो hooves कहलाता है. जैसे वो चलता है, कभी आपने देखा जब घोड़ा चलता है तो टक टक की साउंड आती है, Yes, ma'am. है ना, ऐसा लगता है हील जिसको हील पहन के चलते हैं, टक 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 सा. तो वो हॉर्स का जो हूफ्स होता है, जब वो चल रहा होता है, उसका जो बॉटम पार्ट, उसकी जो साउंड हो रही होती है, वो लग रही होती है. तो ही टर्न राउंड एंड मेंशन to me to stop. अब ये किसने कहानी बताई, who is telling this story? It's ये first one, जो well dressed person. ठीक है. अब वो क्या बोलता है, अब इसको रीड करें आप. I pulled the reins of my horse. He begged me to give him a ride up to the city gate. He was lame. I felt sorry for him. So I pulled him up behind me on the horse. When we reached the city gate, I stopped and turned around to help him get down. Good. That's good. Good reading. I pulled the rein of my horse. He begged me to give him a ride up to the city gate. वो कहता है, यार आप मुझे सिटी गेट तक छोड़ दो, सवारी दे दो सिटी गेट तक. बड़े आजिज़ाना तरीके से बोलता है. चलें भाई. He was lame. I felt sorry for him. मैंने कहा हाँ चलो ठीक है, वो he has the problem that he cannot walk properly. The person who was in well dress, he felt sorry कि चलो ठीक है, I should give him a ride. So I pulled him up behind me on the horse. वो उसको पकड़ता है, ऊपर लेकर आता है, ऊपर करके घोड़े के पीछे, घोड़े पे खुद बैठता, आगे बैठता है और पीछे अपने उस आदमी को बिठा देता है. When we reached the city gate, I stopped and turned around to help him get down. सिटी गेट आता है, आदमी फेस टर्न करता है, और फेस टर्न करने के बाद उसको बोलता है, उसको हेल्प करता है कि अब वो नीचे उतर जाए. बट सडनली होता क्या, ही रिफ्यूज टू डिसमाउंट. वो मना कर देता है कि मैं नहीं उतरूंगा. रिफ्यूज, मना कर देना, टू डिसमाउंट, कि उतर जाना, कि मैं नहीं उतरूंगा. I was puzzled, surprised. I was surprised and gently told him to get down because we had reached the city gate. उसको बहुत आजिज़ाना बोलता है, बहुत अच्छे लहजे में बोलता है कि भाई सिटी गेट आ गया है, अब आप उतर जाइए. He said, why should I get down? मैं क्यों उतरूं? I gave you a ride. मैंने तुम्हें राइड दी है. And now you want to rob me of my horse? अब वो कहता है कि भाई I gave you a ride, मैंने तुम्हें राइड दी है, and now you want to rob me of my horse.
वो परेशान हो जाता है कि भाई घोड़ा मेरा, मैंने आपको राइट दी, ठीक है, और ये ब्लेम क्या करता है, उस पर ब्लेम लगा देता है कि तुम उतरो, ये घोड़ा है और दिस इज नॉट योर हॉर्स, और तुम चोरी करना चाहते हो. सो दिस इज द हाफ पार्ट ऑफ द स्टोरी. द हाफ पार्ट ऑफ द स्टोरी इज स्टिल लेफ्ट. ठीक है, ओके. I want you to answer me if you have any question. If you have any question, you can ask. Then I'll ask you some questions. No, ma'am. अभी कोई नहीं है. अल्हम्दुलिल्लाह जो तक शुक्रिया. Okay, why the caliph was famous? क्यों मशहूर थे caliph? Sorry. Caliph हारून इनकी मतलब कि नॉलेज या इनके नॉलेज की वजह से और क्या नाम है इनके विजडम जो था ना इनका अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस की वजह से और क्या नाम है जस्टिस की वजह से बहुत ही फेमस. ठीक है, बिकॉज ऑफ जस्टिस एंड बिकॉज ऑफ विजडम ही वाज वेरी फेमस. ठीक है, कि उनको Yeah. जस्टिस करना आता था और उनका विजडम बहुत ज्यादा था. दैट इज व्हाई ही वाज वेरी फेमस. कौन हु ब्रॉट द डिस्प्यूट इन फ्रंट ऑफ हारून रशीद? कौन डिस्प्यूट लेकर आया था? काजी लेकर आया था, ये दोनों आदमी खुद आए थे? मैम ये दोनों आदमी खुद आए थे. जैसे सॉरी मैम, ये काजी जो थे ना, काजी लेकर आए थे इन दोनों को. मतलब कि नाम है मैं इसका अभी इनके बीच में जस्टिस नहीं कर पाता, तो अब आप हारून रशीद आप ये इसका ना जस्टिस करें. ठीक है, दैट्स गुड. The Qazi actually he brought a issue and the dispute of the people. And what was the issue? Issue क्या था? मैम कोई मतलब कि अपनी गलती को मानने के तैयार नहीं था. अब दोनों कह रहे थे कि क्या नाम है ये घोड़ा मेरा है. इस पे दोनों पे इशू था इसमें. That was the issue. अच्छा Yusuf, you got the point which I have explained you, but I want you to answer in English next time. That's very good. आपने बहुत confident होकर आपने बहुत अच्छे आंसर दिए. I appreciate you. ठीक है, अब थोड़ा just try to make some sentences in English, so you will be able कि आपका जो है वो communication effective होगा. ठीक है बेटे? Okay. अच्छा, part you have to read from the textbook. आपने half part को खुद read करना है. We will discuss it tomorrow, and then I'll ask you the question again. कि हमने कल क्या पढ़ा है, नहीं आज हमने क्या पढ़ा, तो थोड़ा सा हम उसका रिव्यू भी करेंगे कल. ठीक है? इंशाल्लाह. ओके,